Welcome to my YouTube channel, The Civil Servant of Mankind. Now, this is the last video of previous year questions. Prelim 2090 का ये last वाला video है. In this video, we are going to see from question number 91 to 100. If you have doubt in any question, please comment so that I will reply each and every queries. Let's move on the question 91. क्या है क्वेश्चन 91? अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सी नीति आयोग, डी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो एम जो मिशन है किसके अंडर बनाया गया है? सो नीति आयोग का है अटल इनोवेशन मिशन. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. किसका है? नीति आयोग. सी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 92. एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए है वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इंटू 5 कैटेगरीज. बी है द रूल आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली. सी है द रूल्स प्रोवाइड फॉर एक्सट्रेस्ट एंड इलाबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग facilities. D here, it is a mandatory on the part of waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district. बताइए क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016? सो यहाँ पे C is the correct answer. That rule provide that for exact and elaborate criteria for identification of sites for landfill and waste processing facilities. ठीक है. Let's move on question 93. क्या है क्वेश्चन 93? Consider the following statement. The Environment Protection Act 1986 empowers the government of India to state the requirement of public participation in the process of environment protection and the procedure and the manner in which it is sought. Second, lay down the standard of emission and discharge of environmental pollutant for various sources. Which of the statement given above is correct? ए है वन ओनली, बी है टू ओनली, सी है बोथ वन एंड टू, डी है नेदर वन नॉट टू. बताइए क्या होगा इसका आंसर? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर्स गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू रिक्वायर पब्लिक पार्टिसिपेशन. ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसीलिए इसका आंसर होता है सी. सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 94. Consider the following statement. As per the Industrial Employment Standing Order, Central Amendment Rule 2018. Statement 1 है, if rules for fixed term employment are implemented, it become easier for the firm and companies to lay off workers. Second है, no notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary workman. Which of the statement given above is correct? ए है वन ओनली, बी है टू ओनली, सी है बोथ वन एंड टू, डी है नीदर वन नॉट टू. तो यहाँ पे देखिए जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल 2018 नोटिफाइज फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल सेक्टर थ्रू एन अमेंडमेंट टू द स्टेटेड एक्ट. तो इसके अंडर ये दोनों भी रूल इन्होंने बताए हैं जो करेक्ट हैं. सो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होता है क्वेश्चन 94 का सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ बोथ वन एंड टू. नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 95. क्वेश्चन 95 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट dwellers हैव द राइट टू फेल द bamboos grown on forest areas. Second, as per the scheduled tribe and other traditional forest dwellers recognition of forest right act 2006, bamboo is a minor forest produce. Third statement है, the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest right act 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. Which of the following statement given above is correct? That is वन ए है वन एंड टू, बी है टू एंड थ्री, सी है थ्री ओनली, डी है वन टू थ्री. सो यहाँ पे देखिए हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं. So first statement, as per the recent amendment to the Indian Forest Act 1927, forest dweller have the right to fell the bamboo grown on forest area. तो ये स्टेटमेंट जो दिया है ये रॉन्ग है. फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ऑप्शन ए एंड डी कैंसिल हो जाता है.
वही देखते हैं हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट. एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2000 बाम्बू इज माइनर फॉरेस्ट. यस, ये करेक्ट है. सेकेंड करेक्ट है तो थर्ड सेकेंड करेक्ट है तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. सो थर्ड चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें. यू गॉट इट. हाउ एलिमिनेशन टेक्निक्स वर यूज्ड. नाउ लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन 96. क्या है क्वेश्चन 96? Consider the following statement. As per law, the compensatory afforestation fund management and planning authority exists at both the national and state level. Statement B है people's participation is mandatory in the compensatory afforestation program carried out under the Compensatory Afforestation Fund Act 2016. Which of the following statement is above are correct? A है one only, B है two only, C है both one and two, D है neither one nor two. So जो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ओके, फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है. एज पर द कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट द प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स. ओके, देन जो सेकेंड स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है. दिस इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्ट दैट पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मिसिंग फ्रॉम द प्रोसेस. ओके, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मिसिंग. सो ए इज़ द करेक्ट. A is the correct answer of this question. Got it. Now let's move on the question 97. क्या है question 97? In the context of the country, which one of the following would be the considered as a part of its social capital? Okay, social capital क्या होती है? The proportion of literate in the population, the stock of its building, other infrastructure and machines, the size of population in the working age group, and the level of mutual trust and harmony in the society. सोशल कैपिटल क्या होती है? ओके, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो समझ में आ जाएगा. द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी इज द सोशल कैपिटल फॉर एनी कंट्री. गॉट इट. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन 98. क्या है क्वेश्चन 98? विच ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्टेड a law on the data protection and privacy for its citizen known as General Data Protection Regulation in April 2016. Started implementation of its from 25th May 2018. ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है कनाडा, सी है यूरोपियन यूनियन, डी है यूएसए. सो जो डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया है वो किसने लाया है? यूरोपियन यूनियन ने लाया है. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. So General Data Protection Regulation agreed upon by the European Parliament and Council in April 2016. Data Protection Directives 95/46/EC is Spring 2018 as a primary law regulating how companies protect European Union citizens' personal data. ठीक है, तो किसने लाया था? यूरोपियन यूनियन ने लाया गया था. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन 99, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस previous year question series of 2019. Which of the following statement is correct regarding the Maternity Benefit Amendment Act 2017? A है pregnant women are entitled to 3-month pre-delivery and 3-month post-delivery paid leave. Second, enterprises with crèches must allow the mother minimum 6 crèches visit daily, and women with 2 children get reduced entitlement. Select the correct answer given below. A है 1 and 2, B है 3 only, C है 3 only, B है 2 only, C है 3 only, and D है 1 2 3 ऑल द अबव. क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए. सो देखिए, प्रेग्नेंट वुमन आर एंटाइटल्ड टू 3-month प्री डिलीवरी एंड 3-month पोस्ट डिलीवरी पेड लीव. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है. इट इज़ अ फुल पेड एब्सेंस. Okay, it provide a full paid absence from birth for period of 26 weeks after the amendment. Okay, 26 weeks का होता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. तो फर्स्ट रॉन्ग है तो ए एंड डी तो एलिमिनेट हो जाएगा इसे. फिर सेकेंड, ए इंटरप्राइजेज विथ क्रंचेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रंचेस विजिट डेली. तो इनकरेक्ट है. एनी एस्टैब्लिश विच हैज़ 50 एंड मोर एम्प्लॉई शैल हैव द फैसिलिटी बट नो सच प्रोविज़न. मिनिमम विजिट का कोई प्रोविज़न नहीं है इसे, तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है. तो बचा हुआ हमारा आंसर है सी, थर्ड ओनली. वुमन विथ 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस एंटाइटलमेंट. फॉर वुमन हु आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर हैविंग 2 चिल्ड्रन द ड्यूरेशन ऑफ पेड मैटरनिटी लीव शैल बी 12 weeks. सो ओनली द थर्ड statement is correct in this case. Now let's move on the last question of this series, the 100th question. With reference to the management of minor mineral in India, consider the following statement. फर्स्ट है,
Sand is the minor mineral according to the prevailing law in the country. Second statement is state government have the power to grant mining leases to minor minerals, but the power regarding the formation of rule related to grant of minor minerals lies with the central government. Then third statement is the state government have the power to frame rules for prevent illegal mining of minor minerals. Which of the statement given above is correct? A है 1 and 3 only, B है 2 and 3, C है 3 only, D है 1 2 3. तो जो माइनर मिनरल प्रोडक्ट का जो माइनर मिनरल इन इंडिया, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सैंड इज अ माइनर मिनरल एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज ई ऑफ द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, दैट इज MMDR एक्ट भी बोला जाता है उसको, MMDR एक्ट. ठीक है, कभी लाया गया था 1957 में. ठीक है. फिर स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. सेक्शन 15 ऑफ MMDR एक्ट एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एंड रेगुलेट द ग्रांट ऑफ मिनरल कंसेशन in respect of minor minerals and the purpose of connected therewith. And statement 3 is also correct. As per section 15 of the Mines and Minerals, that is MMDR Act 1957, state government have been empowered to frame rules in respect of minor minerals for regulating to grant of query of leases. ठीक है. तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. गॉट इट. अभी हम लोग ने इस टोटल वीडियो लेक्चर सीरीज़ में देखे हैं 100 क्वेश्चंस जो यूपीएससी द्वारा 2019 में पूछे गए थे. अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं आपकी क्वेरीज का रिप्लाई कर दूंगा. और अगर अभी तक इस चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और मैक्सिमम बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक जय हिंद.